Hi, good morning. In this video, we will discuss about the features of the different kingdoms. Then we will discuss about phylogenetic tree and the dichotomous key. In the last class, we discussed about the different classification systems like two kingdom classification given by Aristotle and Linnaeus. Then we discussed about the three kingdom classification system, four kingdom classification, five kingdom, and six kingdoms. In five kingdom classification given by R.H. Whittaker, we have five kingdoms: Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Emilia. And in the six kingdom classification system given by Carl Woese, we have three domains and six kingdoms. Three domains are bacteria, then we have archaea, and the third domain is eukarya. These are three domains. In the domain bacteria, we have kingdom eubacteria. In the domain archaea, we have archaebacteria. Both eubacteria and archaebacteria are the bacteria, and they both are prokaryotes. Prokaryotes means the organisms which are without nucleus and without any cell organelle. So both eubacteria and archaebacteria, both these kingdoms are prokaryotes and both these kingdom contain bacteria. तो जितने भी इस अर्थ पे बैक्टीरिया हैं, जितने भी, they all will be included in the eubacteria and archaebacteria. Archaebacteria are the most primitive ones, or we can say they are the ancient ones, because they were the one to inhabit this earth when the life originated. So they are the first ancestors जहाँ से life शुरू हुई. After archaebacteria came the modern bacteria, which are called eubacteria, and after these bacteria, kingdom Protista came into light. And in the kingdom Protista, we have eukaryotes. So according to Carl Woese, बैक्टीरिया डोमेन में किंगडम यूबैक्टीरिया आ गया, आर्किया डोमेन में किंगडम आर्कियबैक्टीरिया आ गया. उसके बाद उसने एक और डोमेन दिया था, दैट इज़ यूकैरिया. यूकैरिया डोमेन मीन्स उसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, मीन्स दे विल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस as well as organelles will be there. Now in eukarya domain, we have four kingdoms which are eukaryotic, and those are kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Animalia and kingdom Fungi. ये चारों kingdoms के जितने भी members होंगे, they all will be eukaryotic. So you just need to remember कि जितने भी prokaryotes हैं वो eubacteria, archaebacteria वाले kingdom में होंगे, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड आर्किया डोमेन, और बाकी जो यूकैरिया डोमेन के चार किंगडम्स हैं वो सारे यूकैरियोट्स होंगे. नेक्स्ट वी हैव फाइलोजेनी एंड फाइलोजेनेटिक ट्री. नाउ व्हाट इज़ फाइलोजेनी? इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एवोल्यूशन कैसी हुई और उसमें एवोल्यूशन होने से धीरे धीरे कैसे नई स्पीशीज़ बन गई, कैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स बन गए. ओके, सो दैट हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे कौन से नए ऑर्गेनिजम्स बनते गए, दैट हिस्ट्री इज़ कॉल्ड एज फाइलोजेनी. एंड व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और फाइलोजेनी इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम, that is termed as phylogenetic tree. And whenever we are constructing any phylogenetic tree, we need to start from the oldest one. मतलब जो सबसे पहले इस अर्थ पे आए थे ऑर्गेनिजम्स, उसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री में सबसे पहले मेंशन करते हैं. आफ्टर दैट उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स आते गए, स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूअर वंस, हम ऐसे फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे. Now let's take a look at this phylogenetic tree.
आई टोल्ड यू कि सबसे पहले इस अर्थ पे जो आए थे वो थे बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया आए थे, उसके बाद यू बैक्टीरिया आए थे, एंड दे बोथ आर प्रोकैरियोट्स। तो हमने यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया हुआ है, तो यहाँ से आपका फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो शुरू हो रहा है। ओके, यहाँ से, जिसमें आपके सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, एंड दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स। आफ्टर दिस, जैसे जैसे इस अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता गया, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजेस आते गए, तो धीरे धीरे जो प्रोकैरियोट्स थे दे कन्वर्टेड इनटू यूकैरियोट्स। एंड यूकैरियोट्स में कौन कौन आ रहा है? प्रोटिस्टा आ रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा, देन प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। बट आपका जो प्रोटिस्टा है that is the connecting link between prokaryotes and eukaryotes. Now why we say कि जो protista है that is the connecting link between prokaryotes and eukaryotes? prokaryotes आपके कौन से हैं? ये वाले यूबैक्टीरिया एंड आर्केबैक्टीरिया, और ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस में ये सारे आपके यूकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा को हम कनेक्टिंग लिंक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहले इस अर्थ पे जो आए थे देवर दी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुई तो प्रोटिस्टा बन गए, और बाकी के जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस, वो कहाँ से बने? प्रोटिस्टा से। तो प्रोकैरियोट से पहले प्रोटिस्टा बना, और प्रोटिस्टा के बाद बाकी के जो हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने। सो बेसिकली आपका जो प्रोटिस्टा है दैट इज कनेक्टिंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव वंस, सबसे पहले यही आए थे अर्थ पे, and the most remarkable feature of the archaebacteria is that they are able to survive in harsh conditions। जैसे अगर आपका बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, या एक्सट्रीमली हाई और लो सॉल्ट कंसनट्रेशन है, तो ये उन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। Now what is so special in their structure that they are able to survive in these harsh conditions? It is the structure of their plasma membrane and cell wall, which enables them to live in such harsh conditions. If we talk about this cell wall, then their cell wall is made up of long chain fatty acids, which are very difficult to disrupt. So it is the structure of their cell wall and membrane which will allow them to withstand these harsh conditions. And examples of archaebacteria includes halophiles, methanogens and thermophiles. By halophiles we mean those bacteria which can tolerate extreme of the salt concentration. Halo का मतलब है salt, तो ये बहुत high salt concentration में survive कर सकते हैं। Methanogens are the methane producing bacteria. They are also found in the gut of ruminant animals like cattle. Then thermophiles, thermo means heat or temperature. Thermophiles are those archaebacteria which can survive in extremes of temperature conditions like extreme heat or extreme cold. Now if we talk about eubacteria, then these are modern bacteria, but they cannot survive in harsh conditions. आर्केबैक्टीरिया वर एबल टू सर्वाइव देयर, क्योंकि जब ये अर्थ पे आए सबसे पहले तो उस टाइम पे अर्थ की कंडीशंस काफ़ी हार्श थी, सो दे नीड सम मैकेनिज्म इन देयर बॉडी टू सर्वाइव इन दोज कंडीशंस। तो उसके लिए इनके पास क्या आ गया? स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल आ गई। सेल वॉल इज कंसिस्टिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्केबैक्टीरिया। In eubacteria or modern bacteria, we have examples like cyanobacteria.
And then we have heterotrophic bacteria like lactobacillus, escherichia coli, okay, E. coli. They will fall under kingdom Eubacteria. Cyanobacteria is photosynthetic bacteria, okay, it can prepare its food by photosynthesis. Then we have heterotrophic bacteria which cannot prepare their food by their own, so they will depend on other organisms like E. coli है अगर, तो E. coli जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, that will depend upon other organisms or some chemicals, okay. And if you know, E. coli is also organism which harms the human body, ठीक है. E. coli can infect your intestine एंड इट कैन टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, क्योंकि अपना खाना तो ये खुद बना नहीं रहा, तो ये आपकी बॉडी में एंटर करके आपकी इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन को सक करेगा. देन वी हैव लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस जो है दैट इज़ अ बैक्टीरिया विच इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, एंड दिस बैक्टीरिया फीड्स ऑन मिल्क शुगर. मिल्क शुगर को ये यूज़ करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, एंड इट विल कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड. So all these bacteria come under Eubacteria. Now we will discuss the features of three domains in detail. We will discuss the features of bacteria, archaea and eukarya. Okay, so here we have Eubacteria. This is Eubacteria. All are prokaryotic and unicellular. Here we have domain archaea, which includes archaeobacteria. They are also prokaryotic and unicellular. So एक चीज़ तो आप मतलब याद रख ही लो कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे प्रोकैरियोट्स होंगे और यूनिसेलुलर होंगे. प्रोकैरियोट्स क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ओके, और ना ही उनके पास कोई भी ऑर्गेनेली है. द ओनली ऑर्गेनेली दे हैव इज राइबोसोम. राइबोसोम्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, 70S and 80S. 70S ribosomes are present in prokaryotes like bacteria and archaeobacteria, and 80S ribosomes are present in eukaryotes, in eukarya domain. And eukarya domain में कितनी kingdoms हैं? 4, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया, फंजाई. तो उनके पास 80S राइबोसोम्स होगा, और ये जो बैक्टीरियाज हैं दे विल हैव 70S राइबोसोम. राइबोसोम के अलावा उनके पास और कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होगी, ना ही न्यूक्लियस होगा. Then most of the bacteria reproduce asexually, and the most common method by which they reproduce is conjugation. Conjugation में क्या होता है? दो बैक्टीरिया जो हैं they will connect with each other with the help of a tube-like structure. Okay, so that tube-like structure is called as conjugation tube. और उस tube-like structure conjugation tube से क्या होगा? Both the bacteria will come in contact with each other physically, and the genetic material can be transferred from one bacteria to the another. So in this way they reproduce. That is the asexual method of reproduction. Then if we talk about their nutrition, the bacteria can be autotrophic as well as heterotrophic. And autotrophic में mostly they are chemosynthetic bacteria, because they prepare their food by using some chemicals. So that is called chemosynthesis. And for movement, bacteria also move. Okay, they are also motile. They can move, and how they move? The organelle which help in the movement is the flagella. Then here we have eukarya domain. तो यूकैरिया डोमेन में हमारे पास क्या आ रहा है? किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमिलिया. तो जितने भी यूकैरिया डोमेन के जो ये किंगडम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर यूकैरियोटिक, ओके, एंड यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर. आई टोल्ड यू किंगडम प्रोटिस्टा में मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं,
There are some exceptions. Then plants or animals are multicellular. Fungus is also multicellular except for one fungus that is called yeast, that is unicellular. Then they are eukaryotic, तो इनके पास न्यूक्लियस भी होगा, and they will have membrane bound organelles like ER, Golgi, okay, endoplasmic reticulum, Golgi, lysosomes, mitochondria, ये सारी organelles इनके पास होंगी which were absent in prokaryotes. Then most common mode of reproduction is sexual. Plants में asexual भी हो सकती है, फंगस में भी asexual हो सकती है, ओके, प्रोटिस्टन्स में भी asexual हो सकती है, बट asexual के साथ साथ इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, एंड एनिमल्स शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Then flagella can be present in some organisms, and if flagella is there, it is present in 9+2 arrangement. Now what is this 9+2 arrangement? 9+2 arrangement generally refers to the arrangement of microtubules. Microtubules are the proteins which actually form flagella. अब ये microtubules कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, उनके जो अरेंजमेंट मैनर है दैट इज़ 9+2. सो ऐसे आपका एक सर्कल बना होता है, यहाँ पे आपके 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए एट द पेरीफेरी, और यहाँ पे सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो 9 एट पेरीफेरी ऑफ द सर्कल and 2 in the center. That is 9+2 arrangement of the microtubules, which actually forms the structure of flagella. Here mnemonic is given for remembering that different taxa, okay, that is classification hierarchy. We have domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. तो इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो? Danish King Philip came over for green spinach, okay. So D for domain, king is kingdom, Philip is phylum, came is class, then we have order, then family, genus and species. Okay, so here you can give it a read. Okay, there were many striking differences in the organisms of the different groups. जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हैं, okay, they are strikingly different from each other, and they are also different from the eukaryotes. As a result, archaea and bacteria were distinct enough from other another to warrant their own separate domains. ठीक है, तो आर्की और बैक्टीरिया को हमने सेपरेट डोमेन्स में इसीलिए रखा क्योंकि उनमें काफ़ी डिफरेंस है, दे आर नॉट सिमिलर. डोमेन क्या होता है एक्चुअली? डोमेन जो है दैट इज दी ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन. जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने किंगडम से स्टार्ट किया था, एंड आई टोल्ड यू एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशी द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि किंगडम के सारे इंक्लूड हो जाएंगे और स्पीशी में वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर स्पीशी ओनली. बट देयर इज़ वन मोर लेवल दैट इज़ डोमेन, जो किंगडम से भी बड़ा है. तो डोमेन में जो है दैट इज़ अ ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन. Okay, so we have done the classification system and the features of different kingdoms. So here is question that explain why fungi are placed in a different kingdom than plants. तो पहले के जो साइंटिस्ट थे, पहले के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, लाइक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल, देन अर्नेस्ट हैकल, हर्बर्ट एफ कॉपलैंड, इन्होंने क्या किया था कि फंगस को प्लांट्स के ग्रुप में ही प्लेस कर दिया था.
बट दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। फंगस को हम प्लांट के ग्रुप में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, इसका रीज़न क्या है, इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज जो आपकी फंगस है दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, और जो आपके प्लांट्स हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. So how you can place autotrophic and heterotrophic organisms in the same group? It is not possible, right? So that's why for fungi and plant we have separate kingdoms. Another reason apart from the nutrition, another reason for fungi and plant to be placed in the separate kingdom is they have different cell wall. In case of fungus, the cell wall is made up of chitin, and in case of plants it is made up of cellulose. Okay, so we have two differences. Fungi is heterotrophic and cell wall is made up of chitin, and in plants the nutrition is autotrophic and cell wall is made up of cellulose. फंगस के पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट है, तो इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक है. Okay, one more question is there. Why do scientists use an agreed upon system of binomial nomenclature for naming organisms rather than common names? अब साइंटिस्ट ने कॉमन नेम्स क्यों नहीं यूज़ किए, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए एग्री क्यों कर गए? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हम कॉमन नेम्स यूज़ करते हैं तो उससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो कॉमन नेम्स होते हैं दे विल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. इंग्लैंड में उसको कुछ और बोलते होंगे, स्पेनिश में कुछ और बोलते होंगे, चाइनीज़ में कुछ और बोलते होंगे. सो व्हाट, अगर सारे साइंटिस्ट मिलके मान लो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो फिर तो बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अगर वो सारे अपने लोकल नेम्स यूज़ करेंगे तो. सो साइंटिस्ट जो हैं दे एग्रीड फॉर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बिकॉज इट विल रिमूव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन एंड द साइंटिफिक नेम्स विल रिमेन सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, वेदर इट इज़ इंग्लैंड, चाइना और स्पेन. ठीक है. Okay, next topic is dichotomous key. Now, first of all, you need to know what is dichotomous key and why we are using this key. Dichotomous key is actually a series of statements that are organized in pair. ठीक है, बहुत सारी statements होती हैं इसमें. It can be 10 statements, it can be 15 statements और 20 statements. और ये सारी जो statements होती हैं they are arranged in pair. Let me show you. Here you have 4 statements. Okay, in this box 4 statements are there and every statement is present in pair. Like you can see, in first statement we have 1A 1B, so this is one pair. Then in second statement we have 2A 2B. Then in third statement we have 3A and 3B. Okay, so in this way we have a set of statements which are organized in pair. अब इन स्टेटमेंट से हमें क्या हेल्प मिलती है? These statements or the set of statements will help us to identify the organisms. कि कोई ऑर्गेनिज्म के फीचर्स कैसे हैं, ठीक है, उसका नेम क्या होगा, तो ये सब हमें डायकोटोमस की से पता चल जाता है. एक्चुअली आपको करना क्या होता है इसमें, आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो? जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपको क्लू दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, माइट दी हुई है रेड कलर की. दिस माइट इज लेस देन 1 mm इन साइज. इट हैज़ बीन मैग्नीफाइड टू मेक आइडेंटिफिकेशन ईजियर. वट करेक्टरिस्टिक्स कुड यू यूज टू आइडेंटिफाई द जीनस और स्पीशी ऑफ दिस माइट? ठीक है, तो आपको ये बोल दिया कि ये माइट है. अब आपको इस माइट की जीनस या स्पीशी पता करनी है, तो आप कैसे पता करोगे? विद द हेल्प ऑफ डायकोटोमस की. तो यहाँ पे आपको बॉक्स में इसके फीचर्स दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है. फर्स्ट वी विल गो टू फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट 1A, बॉडी कलर इज रेड. तो अगर बॉडी कलर रेड है तो हमें सेकंड स्टेटमेंट पे जाना है. ओके,
एंड इफ बॉडी कलर इज नॉट रेड तो हमें थर्ड स्टेटमेंट पे जाना है। पहले तो आप माइट का कलर देखो, माइट इज रेड इन कलर, सो फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स वी विल सेलेक्ट 1A बिकॉज बॉडी कलर इज रेड। अब ये पता चल गया बॉडी कलर रेड है, नाउ वी विल गो टू ऑप्शन 2। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस 2A। 2A क्या बोल रहा है, बॉडी विदाउट हेयर, बॉडी ग्लोबुलर एंड समवट इलोंगेटेड, रेड फ्रेश वाटर माइट। रेड तो है ये, अब देखो इसकी बॉडी पे हेयर हैं, हेयर तो लग रहे हैं। एक बार 2B भी रीड कर लेते हैं, बॉडी विद डेंस वेलवेटी हेयर, येस इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट। इफ़ यू लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ दिस माइट, तो इसकी बॉडी पे जो हेयर हैं दे आर वेलवेटी। ठीक है, ऐसे प्रॉपर हेयर नहीं है बट वेलवेटी सी ग्रोथ है एक हेयर की, सो 2B इज़ करेक्ट। तो अब हमें यहाँ पे इसका फाइनल आंसर मिल गया, इट इज़ ट्रॉम्बीडियम जीनस। तो ये जो कीज़ होती है ना, दे आर ऑलरेडी सेव्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, आपको बस उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना होता है और एंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपने पहले सेलेक्ट किया कि बॉडी कलर रेड है, तो फिर आप सेकेंड स्टेटमेंट पे गए, उसमें से आपकी 2B स्टेटमेंट ठीक थी, दैट इट हैज़ डेंस वेलवेटी हेयर, सो द जीनस विल बी ट्रॉम्बीडियम। Now I'll show you one more example. Yes. So here you have organism A, amoeba, and some clues are given here. First clue is it feeds on other organisms such as algae. तो यहाँ से आपको क्या क्लू मिल रहा है कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड बाय इट्स ओन, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, सो इट मस्ट बी हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। सेकेंड क्लू है इट कंटेन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है तो इट मस्ट बी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट तो नहीं होगा, ये यूकैरियोट होगा, न्यूक्लियस आ गया। Specimen is 700 micrometer in length, which is extremely small. Now we will read the statements one by one. First we will look at first statement, that is 1A. 1A is saying that cell is prokaryotic and 1B is saying that cell is eukaryotic. तो इसमें हमें क्लू मिल गया कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस वाला तो यूकैरियोटिक ही होगा, सो 1B इज़ करेक्ट। नाउ गो टू 3। तो 3 में हमारे पास देखो ये स्टेटमेंट है, 3A ऑटोट्रॉफिक, 3B हेट्रोट्रॉफिक। क्लू इज ऑलरेडी मैंशनिंग दैट इट फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, मीन्स इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक। सो हमें दो क्लू मिल गए कि ये यूकैरियोटिक भी है एंड ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। नाउ इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक, so we have to go to number 4. Okay, organism is multicellular. No, अगर ये multicellular होता तो इसका साइज बड़ा होता, but it is extremely small in size. It's only 700 micrometer. So organism is unicellular. तो ये यूकैरियोटिक भी हो गया, हेट्रोट्रॉफिक भी हो गया एंड यूनिसेलुलर भी हो गया। So its name is amoeba proteus. So in this way you will use the dichotomous key, जहाँ पे आपको बहुत सारी statements दी होंगी which are arranged in pair, and उन pair में से आपको correct statement select करनी है और correct statement करने के बाद आपको next key पे जाना है। फिर next key में आप correct statement को select करोगे, उसके बाद फिर आप next key पे जाओगे। So in this way you will finally get your result कि वो organism कौन सा है, so it will help in identification of the organism.
Okay, this question is also based on the dichotomous key, and here it is used to identify the organisms belonging to the subphylum Vertebrata. Vertebrata organisms होते हैं, ठीक है. Animal में I told you there are 11 phylums like Porifera, Cnidaria, Coelenterata, Platyhelminthes, Eschelhelminthes, mollusks, echinoderms. Okay, then we have Chordata. Chordata मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, उसी में आते हैं आपके वर्टिब्रेट्स. Okay, so first look at the squirrel. Hair present, 1B hair absent. तो स्क्विरल की बॉडी को देखो, इसकी बॉडी के ऊपर हेयर हैं. यस, हेयर प्रेजेंट, सो इट बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया. ओके, ये मैमल्स को बिलोंग करती है क्योंकि जितने भी मैमल्स होते हैं दे हैव बॉडी हेयर. उसके बाद टफ्टेड पफिन. टफ्टेड पफिन जो है ये बर्ड होता है, और जो बर्ड होते हैं दे बिलोंग टू क्लास एव्स. एव्स, ओके. अब देखो टफ्टेड पफिन की बॉडी पे हेयर तो नहीं है, सो 1B हेयर एब्सेंट, सो यू हैव टू गो टू 2. आप 2A 2B रीड कर लेते हैं. 2A क्या बोल रहा है, फेदर्स प्रेजेंट. 2B क्या बोल रहा है, फेदर्स एब्सेंट. तो फेदर तो एब्सेंट नहीं है, टफ्टेड पफिन बर्ड है तो फेदर्स हैं इसके पास, सो इट बिलोंग्स टू क्लास एव्स. थर्ड इज योर लैम्प्रे ईल. लैम्प्रे ईल जो है दैट इज अ फिश, बट दिस फिश इज विदाउट एनी जॉ. इसके माउथ में कोई जॉ ही नहीं होता, तो इसका जो माउथ होता है दैट इज सर्कुलर एंड सकिंग टाइप माउथ. ओके, जस्ट रीड द फीचर्स. 2B सेइंग feathers are absent, so go to 3. तो फिश है, feathers तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, सो नाउ वी विल मूव टू थर्ड स्टेटमेंट. 3A jaws present, 3B jaws absent. आई जस्ट टोल्ड यू कि जो लैम्प्रे फिश है, अगर आप इसकी पिक्चर भी देखो तो इसका जो माउथ है वो विदाउट जॉज है, सकिंग सर्कुलर टाइप माउथ है. सो इट मीन्स 3B इज करेक्ट. सो दैट इज क्लास एगनेथा. अगर जॉज प्रेजेंट होते तो हम 4th नंबर को रीड करते, बट यहाँ पे जॉज एब्सेंट है, सो इट बिलोंग्स टू क्लास एगनेथा. नाउ वी हैव ट्राउट. ट्राउट इज अगेन अ फिश. Now we have to read 4. 4A paired fins present, 4B paired fins absent. Just look at the picture. Trout की अगर आप पिक्चर देखो तो इसके पास fins हैं. Okay, just like other fishes, it has fins. So if paired fins are present, we have to go to 5. Okay, 5 read कर लेते हैं. स्केलेटन बोनी और स्केलेटन कार्टिलिजेनियस, मतलब इसका जो स्केलेटन है वो बोन से बना है या कार्टिलेज से बना है. तो जो ट्राउट फिश होती है उसका जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है, बोन से बना होता है, सो दैट बिलोंग्स टू क्लास ऑस्टियोथाइज. जितनी भी बोनी फिशेज होती हैं दे विल कम अंडर क्लास ऑस्टियोथाइज, और जितनी भी कार्टिलिजेनियस फिशेज होती हैं दे विल कम अंडर क्लास कॉन्ट्रीथाइज. नेक्स्ट वी हैव शार्क. अब शार्क के पास कोई पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट. ठीक है, 4th B इज स्टेटिंग दैट पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट. नाउ वी हैव टू गो टू 6. तो 6 रीड करो ज़रा. स्किन स्केल्स आर प्रेजेंट, क्लास रेप्टीलिया. जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके, शार्क. शार्क के पास जॉज होते हैं. 3A में अगर हम देखें तो जॉज आर प्रेजेंट, सो वी हैव टू गो टू 4. 4th में देखो इसके पास पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, ठीक है, इसके पास फिन्स प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट नहीं होंगे. सो पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट. नाउ वी हैव टू गो टू 5. तो 5 में देखो हमारे पास फर्दर 2 स्टेटमेंट्स हैं. A स्केलेटन बोनी एंड B स्केलेटन कार्टिलिजेनियस. तो जो आपकी शार्क होती है इसका जो स्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो इट इज कार्टिलिजेनियस, सो इट इज बिलोंगिंग टू क्लास कॉन्ट्रीथाइज. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्नेक. तो स्नेक पे
स्किन स्केल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसकी जो स्किन होती है वो स्केली होती है, सम स्केल्स, रफ स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, सो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू क्लास रेप्टीलिया, रेप्टाइल्स, जिसमें लीजर्ड्स भी आती हैं. देन वी हैव फ्रॉग. फ्रॉग के पास कोई स्किन्स नहीं होते, स्केल्स नहीं होते स्किन पे, इसकी स्किन जो होती है वो पोरस होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसकी स्किन पे, मॉइस्ट एंड पोरस स्किन इज देयर, सो इट इज़ विदाउट स्केल्स, सो इट बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया. सो जब भी आपको किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर गिवन इन पेयर, और आपको ऑर्गेनिज्म के जो क्लूज़ दिए होंगे उन क्लूज़ को रीड करके आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी होती है, एंड एट द एंड यू विल कम टू नो दैट व्हाट द ऑर्गेनिज्म इज़, और या उसका जीनस क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, या वो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कौन सा वो एनिमल है और कौन सा प्लांट है. सो इन दिस वे डायकोटोमस की इज गोइंग टू वर्क. Now this chapter is complete. We have two chapters in the unit B. Okay, first chapter is complete, that is ecosystems and population change. ठीक है, ecosystems में हमने different types of ecosystem पढ़े, biomes पढ़े, different type of climatic conditions की, we studied about habitat, niche, right? Then we discussed about the communities. Then we discussed about the classification systems, binomial nomenclature, dichotomous की, और इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स भी डिस्कस किए, राइट. सो दिस वाज योर इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन चेंज. दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद mechanisms of population change, that is second chapter of unit B. And in second chapter, that is mechanisms of the population change, we have done adaptations. ओके, अडेप्टेशंस आपको मैंने बताई थी क्या होती हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं. आई विल सेंड यू द पीपीटी एज वेल, जो मैंने खुद पीपीटी बनाई थी उसमें अडेप्टेशंस मैंने आपको पढ़ाया था. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेरिएशंस.